Let us move further. We discussed about definition, we discussed about classifications, we have discussed about the different types of scaling system present in our material science. We discussed about the atomic structure, what is it about, what is its size, what are its detailing. Just I've gone through just slides. So macrostructure is what? Macrostructure is what? Now let us come into the base thing, that is what are the classes of material. Basically classes are defined as what are the classification of classes, both are same. What are the classes of material? As in the second slide we have gone through that. So that are basically metals, polymer, ceramic and composite. And in our previous class we have started from our composite material. In that we have gone through the detailing of how the composite is being named, why it is being named, what is its practical application, and where we can see our around. राइट हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने समझा था, मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर कंपोजिट से. We have started from composite. Why? Because it contain all the basic three parts which is coming initially, metal, polymer, ceramic. सभी कुछ मिलकर composite बनते हैं, ठीक है. And it comprises a new class of material also. Okay. Now moving on to the next slide. Now we need to know what are the metals. Metals मेरे ख्याल से सभी को पता होगा. Every one of us are familiar with the word metal from very childhood. We have seen the metal material around us from very childhood. So just going through the details a little bit, I'm discussing these things. Metals consist of. I am audible to all? My voice is clear? Yes, sir. Okay. So let us go to just brief details regarding this topic, metals. Metals consist of alkaline earth, metalloids and transition metals. Okay, as we know it from very childhood, from very our school days, we've gone through these topics in our chemistry also. Next, metal alloys are mixture of two or more metals and non-metal elements also. For example, aluminium and copper nickel alloy, steel. The alloy and the pure steel both are commonly said as metals. Under this metal, it comes two different topics called ferrous and non-ferrous. Okay, we will be discussing it later on. So the bonding present inside the metals is known as metallic bonding. See, it is given term, the bonding present in the metals are metallic bonding. It is said as metallic bonding. And we have, I think all of us are familiar with this word in chemistry itself. Chemistry में हम लोगों ने सभी कोई पढ़ा है. I hope so that you have all gone through this topic. So just go through in a summarized way. What is a metallic bonding? No particular sharing or donating occurs in this metallic bonding structure. Electron cloud is formed, that is free electrons are formed around the atoms, which is composed of valence electrons and so on. Strong bonds with no hybridization or directionality is present, and this type of bonding is known as metallic bonding, which is present inside the metal atoms, right? So now we are coming into our last topic. What are its properties? What will be the properties of the metal which is having such type of bonding, such type of mixture combination, and which consist of different type of compositions like alkaline earth, metalloids and transition metals. इस तरह की चीजों का प्रॉपर्टी क्या होगा? The property will be the number one, electrically conductive होगा. It will be electrically conductive. It will be very good electrical conductor. It will be a very good thermal conductor, thermally conductive. It will be having high strength, large capacity to carry load over x section area stress. It can bear large amount of stress upon it. तो अपने ऊपर काफी large amount of stress को bear कर सकता है. It is having ductile property also. A ductile means endure large amount of deformation before breaking. Do you understand the word ductile? Ductile means endure large amount of deformation before breaking. Are you getting this point, students? হ্যাঁ স্যার মোটামুটি বুঝতে পারছি, মানে ভাঙার আগে অনেক Yeah, exactly মানে কোনো এক্সাম্পল একটা দাও, এক্সাম্পল দিতে পারবে? কারোর সাথে কোরিলেট করো, কোরিলেটই করা যায়, সেটাই তো এক্সাম্পল, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। কারোর সাথে কোরিলেট করতে পারছো? হ্যাঁ স্যার চেষ্টা করছি। মানে ভাবো কাছাকাছি কোথাও কিছু দেখেছো নাকি এরকম জিনিস?
किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, क्यों भापते पाछो ना? अच्छा, let me give you a very practical example. Have you all visited the welding shop? Anyone? मैं उम्मीद करता हूँ everyone has visited welding Yes, shop sir. nearby. You visited welding shop? Yes, sir. वेल्डिंग शॉप में जब विजिट Yes, करते हो तो वहाँ पे देखोगे जो वेल्डर होता है वो लोहे को पीट कर पतला कर देता है, ठीक है। लोहे को पीट कर टाना भी जाता है प्लस लोहे को पतला भी किया जाता है। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मेटल नोन एज डक्टाइल प्रॉपर्टी। उसी को डक्टाइल कहते हैं। जिस भी मटेरियल को अगर हम पीट कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिफॉर्मेशन करवा सके बिना टूटे, वहाँ देखो लोहा को हम पीट रहे हैं तो या तो चपटा हो जा रहा है या तो लंबा हो जा रहा है, टना जा रहा है, लेकिन क्या टूट रहा है? टूट नहीं रहा है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको कि हम पीट कर उसका साइज एंड साइज चेंज कर सकें, उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये सिर्फ मेटल्स के साथ होता है। एग्जाम्पल दो मुझे, विच मेटल यू हैव सीन। मैंने जब वेल्डिंग शॉप का बात किया तो मैंने स्टील्स का बात किया। सर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील ऑब्वियसली। अदर देन स्टील व्हाट कैन बी? और किसी में देखो प्रॉपर्टी स्टील के अलावा कोई और मेटल का नाम लो जिसमें प्रॉपर्टी होता है, एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में होता है। कॉपर मेटल में होता है। कॉपर मेटल, डज द कॉपर मेटल कंटेन डक्टाइल प्रॉपर्टी? Yes or no? Am I audible, students? Yes. आंसर दाও কিছু। yes no তো বলতেই পারো, না নাই জানতে পারো। এটা ভয় পাওয়ার কি আছে? কিছু ভয়ের তো কিছু নেই, না তো বলতেই পারো। থোড়ি টেস্ট হচ্ছে এখানে। নাই জানতে পারো, এখন তুমি স্টাডি মোডে আছো, শিখছো। You're on the stage of learning. And what is the fear then? Without any hesitation, when I ask any question, say yes or no. If you don't know it, it is okay. I will give you the answer. Right? Ductile metal का एक बेस्ट एग्जांपल है ornaments, just like silver and gold. They are also metals. Yes sir. So you are understanding my point? Gold और silver भी एक ductile metal होता है, ठीक है। So this was the practical example of ductility. The property is known as ductility and the metal is known as ductile material. ठीक है, क्वेश्चंस में आएगा बहुत बार एग्जाम में, what do you mean by ductile material? What do you mean by ductility? The metal containing ductile property is known as ductility. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस के तौर पर आता है एग्जाम्स में। जस्ट वो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आएगा, कौन सा मेटल डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, वुड, ग्लास, सिरेमिक्स, ब्रिक्स, स्टोन चिप्स, आर दे डक्टाइल? दे आर नॉट डक्टाइल। So they are brittle. They are brittle, obviously. That means you are identifying the property, right? यही चीज मैं बोल रहा था, यही चीज मैं जानना चाह रहा था, राइट? ओके, जस्ट मूविंग ऑन फर्दर। मेटल्स हैव अदर प्रॉपर्टी आल्सो नोन एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उसमें होता है। मैग्नेटिक में कौन सा प्रॉपर्टी होता है? फेरोमैग्नेटिज्म और पारामैग्नेटिज्म। मीडियम मेल्टिंग पॉइंट होता है उन लोगों का मेटल का। ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट में वो क्या होता है, मेल्ट करके पिघल जाएगा, एग्जिस्टेंस खो देता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द मेटल एप्लीकेशंस? As we have gone through the properties, we have discussed numerous topics. We have discussed numerous practical applications also. So from there you can define or you can say what are its applications. Like जब वो डक्टाइल होगा तो हम उसको किसी भी वायर के अंदर में डाला जाता है। बहुत सारा वायर के अंदर में देखोगे कॉपर वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, प्रेजेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द लोड वी डिसाइड विच वायर इज टू बी यूज्ड एट विच सर्कमस्टेंस। आ रही बात समझ में? हेलो, ऑल ऑफ यू म्यूट योर मोबाइल, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जब क्लास चलता रहे तो काइंडली अपना मोबाइल को म्यूट में रखोगे, ठीक है। जब बोलना हो तो अनम्यूट करोगे, फिर फर्दर तुरंत म्यूट कर दोगे। Now this is the electrical wire where it is being widely used. The aluminium metal, copper metal and silvers are also used basically. Silvers कहाँ यूज होता है? नहीं आ रहा सर।
No one is getting my volume. Yes, it's audible. Audible though? Yes, Okay. sir. The person who is not getting my voice, check your connectivity. It might be the reason. Okay, moving on to next point. Metal applications finds wide used in heat transfer fins, where aluminum and silver is widely used to make heat transfer fins. एल्यूमिनियम फॉयल का नाम सुने हो, जिसमें कि रोटी खाना वगैरह को देखते हो कि पैक किया जाता है, पतला पतला सीट्स मिलता है, बहुत सारा खाने पीने का दुकान में देखते होगे, सिल्वर टाइप का दिखता है, रिजेंबल होता है, वो सिल्वर नहीं होता, एल्यूमिनियम फिन्स होता है, पतला पतला सीट को किया रहता है, क्या था, हीट को रिस्टोर करने में काम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना को गर्म रखेगा, ठीक है। उस तरह का हम लोग जब प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग उस चीज़ को लगाते हैं, जहाँ पे हीट को रिस्टोर करके बहुत देर तक रखते हैं। सर का आवाज? हेलो, एनीबॉडी सेइंग समथिंग? काम करो, तुम लीव करके ज्वाइन करो। किसका प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर, रोहित कुमार बैठा था। अच्छा अच्छा, जस्ट वेट, उसने फिर रिज्वाइन किया लगता है, मैं से ज्वाइन करा लेता हूँ। ओके, हाँ, इसी का प्रॉब्लम हो रहा है। उसका पहले भी प्रॉब्लम हो रहा था, मैं मार्क किया था, तो पिछले क्लासेस में भी मैंने मार्क किया है कि उसका प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। He might be having network issues in his area, so just check that. Okay. Now in plumbing area we find metal which is known as copper is being used for plumbing. प्लम्बिंग में कॉपर यूज होता है, क्या मतलब समझते हो? कॉपर का बहुत ही अच्छा यूज है। हम लोग देखो हाउस होल्ड में जो प्लम्बिंग मेटल्स यूज करते हैं वो बेसिकली स्टील या स्टेनलेस स्टील्स का बना हुआ होता है, या फिर स्टील एलॉयज का बना हुआ होता है। घर में जो लोग नल वगैरह यूज करते हैं ना, प्लम्बिंग मटेरियल बाथरूम्स वगैरह में, किचन्स सर। में, हाँ, तो जो yes, नल sir. वगैरह यूज करते हैं देखे होगे क्या चीज का बना हुआ रहता है? लोहे का रहता है, ठीक है। सर इसमें दो चीज का रहता है, एक से ब्रास का भी होता है और एक कॉपर का भी होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो कॉपर का क्यों बोला गया है, व्हाट इज द रीजन? इट इज द वेरी बेस्ट क्वालिटी विच इज यूज्ड इन प्लम्बिंग एंड इट इज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल। ये कॉस्टली आता है कॉपर का। कॉपर का कोई भी मटेरियल जो होगा वो कॉस्टली होगा, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा करता है और उसका लॉन्जिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेबल होता है, वो काफ़ी लंबा टाइम तक सस्टेन कर सकता है कंपेरेबल टू अदर मेटल्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम गिविंग जस्ट वन एग्जांपल वेयर मेटल फाइंड वेरी यूज वाइड एप्लीकेशंस। लाइक हम लोग सुने होंगे एसीस लगाते हैं सभी कोई घर पर अपने अपने, एयर कंडीशनर। यस सर, उसका जो पाइप होता है कॉपर का, उसका जो पाइपिंग होता है उसमें देखो दो पाइपिंग होता है, एक एल्यूमिनियम कॉइलिंग होता है, एक कॉपर कॉइलिंग होता है। तो जो कॉपर कॉइलिंग होता है उसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है, एल्यूमिनियम कॉइलिंग का कॉस्ट उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि सर्टेन टाइम के बाद वो खराब हो सकता है, नहीं कॉपर बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जल्दी हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा प्लम्बिंग मटेरियल जो भी कॉपर का बना होगा सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो बेसिकली हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए हमें कुछ भी मटेरियल चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है। तुरंत अगर हम खराब रहेगा घर में सब तुरंत चेंज कर लेते हैं, कंपनीज में वो पॉसिबिलिटी नहीं होता तुरंत चेंज कर पाना, तो लोगों का लॉस हो जाएगा। सर लेकिन उससे कॉपर में उसमें तो कूलिंग इफेक्ट भी तो इफेक्टिव रहता है ज़्यादा, इससे यूज होता है। कूलिंग इफेक्टिव रहता है क्या? फिर से बोलो। हेलो। कॉपर जो यूज होता है तो उसमें कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसके लिए भी कॉपर यूज होता है क्या? नहीं, कॉपर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। कूलिंग के लिए नहीं यूज होता है, बेसिकली हीट रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। हम लोगों के कंट्री में हीट बहुत बड़ा फैक्टर है, तो जो हीट से रिलेटेड जो मेटल्स होता है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कूलिंग के लिए नहीं। कूलिंग एटमॉस्फेयर हमारा कितना है, हम लोग तो इंडस्ट्री के अंदर काम करें, इंडस्ट्री के अंदर रहें या बाहर रहें, हमको तो देखो साल का जो 12 महीना है, 12 महीना हम लोग मैक्सिमम 7 मंथ से 8 मंथ हम लोग हीट ही मैक्सिमम ऑब्जर्व करते हैं। 2-3 महीना विंटर रहता है और 2-3 महीना वाटर रहता है, रेनफॉल रहता है, बाकी टाइम तो हम लोग हीट ही ऑब्जर्व करते हैं ना, हीट ही रहता है सब तरफ। हम लोग ऐसा मेटल को यूज़ करते हैं जो हीट रेजिस्टेंस हो, हीट को बर्दाश्त कर सके ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। कूलिंग मटेरियल हम लोग मैटर नहीं करता हमारे पास, क्योंकि कूलिंग एनवायरनमेंट है ही नहीं हमारे पास।
Got my point? Any other question? Okay, I think you're not having any question then. Acha, I am audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Moving on sir. to next point, the metal application wide it find its wide use in construction beams like bridges, skyscrapers, rubber, etc. Steel and यहाँ पे देखो FeC एलॉय लिखा गया है, क्या चीज है? एल्यूमिनियम कार्बन एलॉय, ठीक है। हम लोग मेटल के एप्लीकेशन हम लोग कार्स में भी देखते हैं, स्टील यूज किया जाता है, वो भी हमारा आयरन और कार्बन एलॉयज होता है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, मेटल एप्लीकेशंस पाते हैं कहाँ पर? सोप केन्स, अप्लायंसेस लाइक स्टेनलेस स्टील सीट्स मेटल्स, यूटेंसिल्स जो किचन में यूज किया जाता है, टूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड मेनी मोर। तो हम लोग के पास, हम लोग अगर नज़र कर घुमाएंगे तो हमारे पास मेटल का वाइड एप्लीकेशन है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें हम लोग मेटल्स को देखते हैं, मेटल्स हम लोग बनाते हैं, हम लोग मेटल से बनाना पसंद करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लास्टिंग करता है। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर ले लूँ तो मैं अगर बात करूँ टू व्हीलर्स का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वाइड यूज़ होता है मेटल्स का। आजकल नाउ डेज फाइबर इज बिंग वेरी वाइडली यूज, बहुत ही रेयर हम लोग मेटल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं फाइबर का यूज़ करने का। क्यों? नंबर 1 इज़ कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट से बचेंगे, सस्ता पड़ता है। नंबर 2 इज़ व्हाट? मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर हम स्टील का लेंगे, स्टील सर्टेन टाइम बाद रस्ट कोरोजन होने का डर रहता है, कोरोड कर सकता है, लेकिन अगर हम हाई क्वालिटी फाइबर अगर वहाँ लगाते हैं तो कोरोड करने का टेंशन नहीं रहता हमारे पास, मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं रहता है कि सर्टेन टाइम बाद वहाँ पे देखोगे अगर आयरन बॉडी होगा तो वहाँ पे पेंट फूलने लगता है, उसको फिर से पॉलिश करना पड़ता है, रफ करके वापस पेंट करके पॉलिश करो, लेकिन फाइबर में चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग खोजते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्टील में बॉडी का हमको गाड़ी मिले ताकि वो ज़्यादा अच्छे लास्टिंग करे, स्ट्रेंथ बॉडी का अच्छा खासा हो। फाइबर का स्ट्रेंथ तो स्टील से कंपेरेबल कम होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हाँ सर, बिल्कुल सर। Okay then, moving on to our next slide. रुको। ओहो। Sir, call drop हो হ্যাঁ, তোমার কল অনেক প্রবলেম করছে রোহিত। Check your connectivity. Okay, let us move on to next slide. Our next topic is polymer. I think the word polymer, we are very much familiar with this in our previous subject which we have gone through in our school days in chemistry. केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये वर्ड को पढ़ा है, पॉलीमर। आई थिंक एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस वर्ड पॉलीमर, yes or no? Yes sir, polymer. Okay, then we are going in a very fast manner. हम लोग उम्मीद करते हैं तो हम लोग इसको स्क्रीन थोड़ा पढ़ लेते समराइज करते हुए। Okay, just reading it in a summarized manner. Polymer consists of various hydrocarbons, as we know. It forms a chain of hydrocarbons and combinedly it known as a polymer. ठीक है, बहुत सारा मोनोमर एक साथ हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइंडली जब चेन बनाता है तो उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, ये सभी कोई जानते हैं। तो पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होता है हाइड्रोकार्बन्स विद सिलेक्ट एडिटिव्स टू एलुडिकेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पॉलीमर्स और क्या था? पॉलीमर्स आर टिपिकली डिसऑर्डर्ड एमॉर्फस होता है, स्टैंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, बॉन्डिंग कैसा होता है? कोवैलेंट, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस का बॉन्डिंग होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी डक्टाइल होता है, कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू 1000% of its original length. You can imagine how much ductility it is having. It is light in weight, low density का होता है इसलिए light in weight होता है। मीडियम स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, मीडियम स्ट्रेंथ में होता है, ऐसा भी नहीं होता है,
it is called as medium strength depending upon the additive it is using. आपस में बॉन्डिंग के जो एडिटिव लोग यूज करते हैं वो किस तरह का एडिटिव यूज किया गया है उस पर डिपेंड करेगा उसका स्ट्रेंथ. केमिकली स्टेबिलिटी होता है. इनर्ट टू कोरोसिव इन्वायरमेंट, कोरोजन नहीं पकड़ता चूंकि इट इज ए केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो कोरोड नहीं करेगा, रस्टिंग नहीं होगा. और इट इज हैविंग ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम टेम्परेचर में मेल्ट कर जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी इट सम एप्लीकेशंस. पॉलीमर एप्लीकेशंस. पॉलीमर एप्लीकेशन हैज अ वाइड एरिया. लाइक कार टायर्स हम लोग पॉलीमर यूज करते हैं. वल्कनाइज्ड पॉलीमर. वल्कनाइजेशन क्या होता है? हैव यू हर्ड द वर्ड वल्कनाइजेशन? सर वोल्केनो इरप्शन को बोल. नो नो नो. एनीवन एल्स? यहाँ पे यूज किया गया वर्ड, हियर वी आर सीइंग दैट वी आर यूजिंग अ वर्ड वल्कनाइज्ड पॉलीमर, बट वल्कनाइज्ड पॉलीमर इज कमिंग फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता हुआ वल्कनाइज्ड पॉलीमर को बनाया जाता है. एंड वल्कनाइज्ड पॉलीमर ए प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसका कार टायर्स. सी, कार टायर इज बेसिकली मेड ऑफ व्हाट? इट इज मेड ऑफ रबड़. रबड़ का बना हुआ रहता है ना. यस सर. तो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस होता है. इन प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन वी ऐड सल्फर. यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है इसीलिए एडेड सल्फर to make it more stiff. हेलो. Sulfur along with carbon into the rubber. That process is known as vulcanization. तो एग्जामिनेशन से बहुत पूछा जाता है what do you mean by vulcanization and where it is used. Then you need to say that vulcanization is basically used in making car tires. ये कार टायर में ही बेसिकली यूज करते हैं हम लोग. मैंने बोला था ना क्लास के समय में म्यूट रखोगे अपने अपने मोबाइल को. फिर किसी का सर योर वॉइस ना समटाइम्स इज क्रैकिंग. ये मेरा ही वॉइस ऐसा हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं हो रहा है. हाँ सर, बीच में हो रहा है. बीच बीच में हो रहा है. ओके ओके, देन माइट बी. अब मैं क्या बोलूँ? ओके, ट्राई एज मच पॉसिबिलिटीज. हाँ किया जा सकता है ना. ठीक है, तो वल्कनाइजेशन आई थिंक एवरीवन इज क्लियर. व्हाट डू यू मीन बाय वल्कनाइजेशन? इज इट क्लियर है ना वल्कनाइजेशन? यस सर, यस सर. Okay, okay. Moving on to next application is Ziploc bags. Do you understand Ziploc bags? Students, do you understand Ziploc bags? No sir. Ziploc bag. Sir, those normal bags. Ziploc bags. सोचो थोड़ा सा. Sir means that which bags. It is a polymer material manufactured together जिसके अंदर में जिप लगा रहता है बीच में बैग का. सिंपल, एक सिंपल बैग है जिसमें जिप का मतलब क्या होता है? चेन. कोई भी अगर प्रॉपर्टी मंगवाते हो, अगर इससे जिप देखो दो तरह का होता है. एक चेन टाइप जो हम लोग पैंट्स वगैरह में यूज करते हैं, और एक जिप होता है जिसको हम लोग प्रेस करके क्लोज कर सकते हैं. आपस में इंटैक्ट होकर क्लोज हो जाता है जब प्रेशर डालते हैं तो. और फिर जब बीच में प्रेशर दो हाथ लेकर टानेंगे तो खुल जाएगा. तो वहाँ पे लॉकिंग ही नहीं होता, प्रेशर से प्रेशराइज से ब्लॉक हो जाता है. बात समझ में आ रही है? जैसे तुम्हारा कैसे बोले हैं, हल्दीराम का अगर चनाचूर वगैरह लेते हैं उसमें भी देखो जीपलॉक बैग्स आता है. हाँ, उसको आपस में दो वो ब्लॉक करेगा, बीच में एक सिंगल ब्लॉक घुस के प्रेशराइज होकर ब्लॉक हो जाएगा. फिर जब टानेंगे तो अलग हो जाएगा. जैसे हम लोग पैंट्स वगैरह में चेन यूज करते हैं ना, उस तरह का नहीं होता, वो अलग प्रेशराइज चेन और ब्लॉक होता है. तो जीपलॉक बैग्स कहते हैं. तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली ए पॉलीमर मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज कंटेनर, भी हमारा पॉलीमर मटेरियल होता है. प्लम्बिंग में हम लोग देखो पीवीसी हम लोग यूज़ करते हैं. मैंने पहले ही बताया था पॉलीमर है. मैंने इसके बारे में क्लास में डिस्कशन किया था पिछले क्लास में. डिटेल में हम लोगों ने बताया था पीवीसी क्या होता है. पीवीसी पाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं घर में. ठीक है, तो ये प्लम्बिंग में यूज़ किया जाता है. ओके, एंड देयर आर मेनी मोर. एरोस्पेस, एनर्जी एप्लीकेशन, टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है.
टेफ्लॉन एक मटेरियल होता है जो कि यूज़ किया जाता है, बहुत ही वाइड यूजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें पॉलीमर यूज़ करते हैं। तो हम लोग को तभी मोबाइल में भी एक चीज़ कवर वगैरह भी पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ होता है। पीछे में जो फाइबर शीट्स था वो भी बेसिकली एक पॉलीमर मटेरियल है। हम लोग जो मोबाइल आ रहा है, मोबाइल का पूरा मेटल का बना हुआ रहता है, तो फाइबर बॉडी भी होता है, और अब आजकल तो मैक्सिमम फाइबर बॉडी ही आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो वो जो फाइबर बॉडी होता है ना, बेसिकली पॉलीमर मटेरियल होता है। तो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ अ पॉलीमर।